Welcome dear students. We were studying unit number 2 Physiographic and Drainage of Maharashtra part 4. First learning point of this chapter Physiographic and Drainage of Maharashtra. First part have covered in previous lecture physical division of Maharashtra, the Konkan coastal land, the Western Ghat and the Maharashtra plateau. This is the physiographic of the Maharashtra. Now today we have to discuss the drainage of Maharashtra. Drainage of Maharashtra. Point B, major river in Maharashtra. There are divided in two parts. First part, east flowing river. Subpoint A, Godavari, B, Bhima and C, Krishna. Second point, west flowing river. Point A, Narmada, point B, Tapi and point C, Paiganga. Now today to discuss the drainage of the Maharashtra. First of all, what is mean by drainage? Drainage system is the geomorphology process and pattern by which water, other liquids and drain from the place. Place like that is stream, river and lakes. This is the drainage basin. The major river in Maharashtra. First Bhima river, second Krishna river, third Godavari river, Tapi river and last Narmada river. This is the 5 major river in Maharashtra river. Now today to learning point of the east flowing river. East flowing river, first Bhima river, second Krishna river and third Godavari river. This is the 3 major river in east flowing river. And Bhima river tributaries river Nira, river Man, river Sina, river Bhagwati and Krishna river Koina, river Varna, river Panchaganga, river Yarala and Godavari river basin Parwana, Manjira, Maner and last one Purna, Parhanita, Indravati. This is the tributaries of these rivers. Now one by one study this major river of the Maharashtra. First river है Bhima river. Bhima river is the several tributaries. Origin in Western Ghat or in the offshore from the Bhima basin. Look at this picture. दिस इज़ द भीमा रिवर. यहाँ पर जो स्काई ब्लू कलर का दिख रहा है भीमा रिवर है और यहाँ ये कहाँ से फ्लो कर रही है, ये वेस्टर्न घाट. यहाँ पर दिख रहे है पूरा वेस्टर्न घाट सह्याद्री रेंजेस यहाँ से फ्लो कर रही है. अब वेस्टर्न घाट में सह्याद्री रेंजेस इन द वेस्ट. यहाँ पर देखो ये वेस्ट में पूरा क्या है, सह्याद्री रेंजेस है. सह्याद्री रेंजेस में जो 2 इम्पॉर्टेंट रेंजेस है वो कौन सा है, हरिश्चंद्र बालघाट दिख रहे हैं, ये हरिश्चंद्र है एंड ये बालघाट. दिस इज द रेंजेस एंड नॉर्थ ट्रिब्यूटरीज ऑफ द कृष्णा. कृष्णा कहाँ पर आएगा, नॉर्थ ट्रिब्यूटरीज में ये फ्लो कर रहा है. विच राइजेज इन द खेड़ सब डिवीजन ऑफ पूना डिस्ट्रिक्ट. ये पूना डिस्ट्रिक्ट पर अवेलेबल है. भीमा बीइंग अ ट्रिब्यूटरी ऑफ द कृष्णा इज इक्वली इम्पॉर्टेंट इन द इकोनॉमिक ऑफ द स्टेट. द ट्रिब्यूटरीज गोहार, इंद्रयानी, मौला मुथा, देखो यहाँ पर आपको दिखाई देगा ये मौला मुथा है. ये सब क्या है, ये ट्रिब्यूटरीज हैं किसकी, भीमा एंड कृष्णा ट्रिब्यूटरीज की. नीरा ऑल इमर्जिंग फ्रॉम द हैवी रेनफॉल रीजन ऑफ द सह्याद्री रेंजेस आर द इम्पॉर्टेंट सोर्स ऑफ इरिगेशन एंड हाइड्रो पावर. यहाँ पर बहुत ज़्यादा हैवी रेनफॉल होने की वजह से ये जो रिवर है बहुत अच्छा फ्लो करते हैं, जिसकी बेस पर यहाँ पर कृष्णा रिवर भी अवेलेबल है पूना डिस्ट्रिक्ट में.
तो यहाँ पर हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर जनरेट किया गया है। देखो यहाँ पर आपको दिखाई दे रहेगा कोयना रिजर्वायर, दिस इज़ द हाइड्रो इलेक्ट्रिक स्टेशन है। तो ये स्टेशन किस वजह से है, यहाँ पर पानी जो है इसका कल्टीवेशन एरिया, अकुमुलेशन एरिया बहुत ज़्यादा है, इसकी वजह से। वेस्टर्न घाट मोथा एंड नेरा कैनल सप्लाई वाटर ऑफ द एग्रीकल्चर पर्पस। यहाँ पर पानी होने की वजह से एग्रीकल्चर पर्पस में के लिए इसको सप्लाई किया जाता है फॉर इरिगेशन के लिए। देन कंस्ट्रक्शन ऑफ द डैम इन भीमा रिवर उज्जानी हैज़ बीन द रिसेंट कम्प्लीटली इन्हांस द इम्पोर्टेंस। तो यहाँ पर इम्पोर्टेंस रिवर में जो भीमा में आएगा वो फर्स्ट है द रिवर नीरा, रिवर मान, रिवर सिना, रिवर भगवती, रिवर मोला एंड रिवर इंद्रियानी। We have discussed one by one this river. First, river Nira. River Nira is a major tributary of Bhima that join on the right bank near Akluja in Solapur district. ये सोलापुर डिस्ट्रिक्ट में अवेलेबल है, सिचुएटेड है। इट राइजेज ऑफ बहूर सह्याद्री रन्स साउथ ईस्ट किसको कहेंगे, ये नॉर्थ है, यहाँ पर नॉर्थ रहेगा, ये साउथ रहेगा, उसके बाद यहाँ पर क्या आएगा, ईस्ट हो जाएगा और ये वेस्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर जो पुणे और सतारा सोलापुर डिस्ट्रिक्ट्स में है, यहाँ पर टोटल लेंथ जो है नीरा रिवर की, किसकी, नीरा रिवर की जो टोटल लेंथ है वो कितनी आएगी, 165 किलोमीटर नीरा रिवर की। ओके उसके बाद है सेकंड आपका रिवर मान। रिवर मान इज़ द राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज ऑफ रिवर भीमा। यहाँ पर रिवर भीमा कहाँ पर है, यहाँ पर रिवर भीमा। अब रिवर भीमा में जो रिवर मान है तो राइट बैंक है, दिस इज़ द महादेव रेंजेस। महादेव रेंजेस कहाँ आएगा, दिस इज़ द महादेव रेंजेस, यहाँ पर आएगा। देखो ये दिख रहा है, ये महादेव रेंजेस में। अब इसको सब डिवीज़न किया गया है, कौन से डिस्ट्रिक्ट में, सतारा डिस्ट्रिक्ट में डिवाइड किया गया है। एंड दिस इज़ द थ्रो अतपड़ी इन सांगली डिस्ट्रिक्ट। जो सब डिवीज़न में किया गया है उसमें सबसे पहला डिस्ट्रिक्ट है सतारा और जो दूसरी डिस्ट्रिक्ट है वो कौन सी है, सांगली। द टोटल लेंथ इज़ 150 किलोमीटर ऑफ दिस रिवर। कितनी आएगी इसकी, 150 किलोमीटर इसकी लेंथ आएगी। नेक्स्ट पॉइंट है आपका रिवर सीना। रिवर सीना इज़ द लॉन्गेस्ट लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी ऑफ रिवर भीमा। ये कितना है, देखो यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा रिवर सीना। ये कैसी है, लेफ्ट बैंक है। विच राइजेस फ्रॉम दी हरिश्चंद्र रेंजेस। यहाँ पर हरिश्चंद्र रेंजेस दिख रही है, यहाँ पर हरिश्चंद्र एंड बालघाट रेंजेस यहाँ पर सिचुएटेड की गई है। दिस इज़ द रेंजेस सिचुएटेड अहमदनगर डिस्ट्रिक्ट। अहमदनगर डिस्ट्रिक्ट में मीट होती है कौन सी रिवर, भीमा नियर अक्कलकोट। भगवती इज़ अ मेजर ट्रिब्यूटरी ऑफ रिवर सीना। द टोटल लेंथ ऑफ दिस रिवर सीना विथ इन सोलापुर डिस्ट्रिक्ट अबाउट 60 किलोमीटर। कितना किलोमीटर आएगा, 60 किलोमीटर इसकी टोटल लेंथ है। नेक्स्ट पॉइंट है आपका रिवर भगवती। रिवर भगवती इज़ अ लार्ज ट्रिब्यूटरीज ऑफ रिवर सीना। ये रिवर सीना है, उसकी जो लार्ज ट्रिब्यूटरीज है वो कौन सी है, रिवर भगवती। बालघाट रेंजेस नियर द बर्शी टाउन इन सोलापुर डिस्ट्रिक्ट। सोलापुर डिस्ट्रिक्ट में ये सिचुएटेड है। दिस इज़ द फ्लो फ्रॉम द बर्शी एंड पार्ट ऑफ द मराठवाड़ा इन फॉल इन टू रिवर सीना इन महाडा तहसील ऑफ सोलापुर डिस्ट्रिक्ट। ये कहाँ पर सिचुएटेड की गई है,
मराठवाड़ा में भी है ये। और महाडा जो तहसील है, ये जो अवेलेबल है जो तहसील है ये सोलापुर में है। तो यहाँ से ये जो ड्रेनेज सिस्टम फ्लो करता है। नेक्स्ट पॉइंट है रिवर मौला मुथा एंड रिवर इंद्रियानी। रिवर इंद्रियानी ये देखो यहाँ पर दिख रहा है आप लोगों को। यहाँ पर रिवर इंद्रियानी जो है ये देयर आर दी 2 मेजर ट्रिब्यूटरीज ऑफ रिवर भीमा। रिवर भीमा की 2 ट्रिब्यूटरीज है, रिवर मौला मुथा एंड रिवर इंद्रियानी। They flow through a very narrow and rigid valley flow which of the basaltic formation। जो ये जियोमॉर्फोलॉजिक प्रोसेस हुआ था उसकी बेस पर यहाँ पर इसमें वैली की वजह से ये वैली फ्लो की गई है। ओके, हेयर लिटरल इरोजन इज़ द मोर प्रोमिनेंट विच लार्जली अकाउंट ऑफ द ब्रॉड वैली ऑफ द रिवर भीमा। यहाँ पर रिवर भीमा जो है दिस इज़ द मोस्ट रिवर राइजेस ऑफ द अहमदनगर प्लेटू एंड बालघाट रेंजेस एंड दिस इज़ द entry of the Bhima river Karnataka about 40 kilometers south of Solapur district joins Krishna near the Raichur in the Karnataka and total length of this stream about 850 kilometer to 800 kilometer। stream lies in Maharashtra। ये कितनी इसकी टोटल लेंथ है 850 किलोमीटर टू out of which about 800 kilometer stream lies in the महाराष्ट्र में अवेलेबल है। नेक्स्ट है आपका जो सेकंड है कृष्णा रिवर। कृष्णा रिवर इज़ वन ऑफ द मोस्ट मेजर रिवर ऑफ द साउथ इंडिया विथ इज़ द मेंटेनेंट कोर्स ऑफ कृष्णा रिवर साउथ ईस्ट वर्ड मीन्स ये साउथ है और ये ईस्ट है ना। यहाँ पे साउथ है और ये ईस्ट है। तो ये साउथ ईस्ट वर्ड फ्लो करती है जिसकी वजह से इसका डिस्टेंस कितना है 364 किलोमीटर है। एंड दिस इज़ द ईस्टर्न फ्लैंक ऑफ द वेस्टर्न घाट इन द नॉर्थ वेस्टर्न कॉर्नर ऑफ दिस ड्रेनेज ऑफ बे ऑफ बंगाल। जब ये फ्लो करता है तो ये कहाँ पर डायरेक्ट फ्लो करता है बे ऑफ बंगाल जो इंडिया का जो पेनिनसुलर रीजन है। तो पेनिनसुलर में यहाँ पर जो ये साउथ ईस्ट वर्ड में आता है वो क्या है वेस्ट बंगाल में फ्लो करता है। द ईस्ट वर्ड फ्लोइंग सीजनल स्ट्रीम रिवर लाइक कोयना वरना पंचगंगा यराल दिस इज़ द मेजर ट्रिब्यूटरीज रिवर ऑफ द कृष्णा रिवर एंड दिस इज़ द कोयना रिजर्वायर ड्यूरिंग द ड्राई रीजन। यहाँ पर देखो कोयना जो रिजर्वायर है वाटर बहुत ज़्यादा अवेलेबल होने की वजह से कोयना रिजर्वायर हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी पावर प्रोजेक्शन का स्टेशन यहाँ पर सिचुएटेड है। क्योंकि यहाँ पे बेनिफिशियल क्या है यहाँ पर रिवर जो है ये मीन्स साल भर ये फ्लो करता है बहते रहता है भरा रहता है जिसकी वजह से यहाँ पर जो वाटर है प्रेजेंटली वाटर रिवर अवेलेबल होता है। दिस इज़ द पेरेनियल रिवर ऑफ द वाटर एंड कोयना रिजर्वायर ड्यूरिंग द ड्राई सीजन में ये अवेलेबल होता है। द ब्लैक सॉइल ऑफ द ट्रैक वाटर सप्लाई इनोवेटेड स्ट्रीप of the farmers are the factor responsible for the agriculture development of the region। तो यहाँ पर बेनिफिशियल ये होता है कि यहाँ पर एग्रीकल्चर इसका बहुत बेटर रहता है बिकॉज ऑफ यहाँ पर वाटर पेरेनियल रहता है साल भर पानी यहाँ पर मौजूद रहता है प्रेजेंट रहता है जिसकी वजह से एग्रीकल्चर एक्टिविटी यहाँ पर बेटर होती है। अब यहाँ पर जो कृष्णा रिवर है कृष्णा रिवर में सबसे पहला रिवर है रिवर कोयना जो है दिस इज अ राइट बैंक ऑफ ट्रिब्यूटरीज ऑफ द कृष्णा। देखो ये कृष्णा है कृष्णा की जो राइट ट्रिब्यूटरीज है वो क्या है कोयना है। इट इज़ ड्रेन पार्ट ऑफ द जोली पठान एंड काड़ा तहसील ऑफ सतारा डिस्ट्रिक्ट।
सतारा डिस्ट्रिक्ट में अवेलेबल है। रिवर इज़ द हार्डनेस कंस्ट्रक्शन ऑफ डैम कोयना नगर फ्रॉम विच ऑफ द वाटर रेगुलेटेड टू लोअर कोर्स फॉर द ड्रिंकिंग एंड इरिगेशन पर्पस। ये किसकी वजह से यूज़ किया जाता है? ड्रिंकिंग एंड इरिगेशन पर्पस के लिए यूज़ किया जाता है। एंड कोयला हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन project is an assist to study region also to the state of Maharashtra। स्टेट ऑफ महाराष्ट्र में ये हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी बहुत ज़्यादा फेमस की गई है, इसकी स्टडी भी की गई है। नेक्स्ट पॉइंट है इसमें आपका रिवर वर्ना। रिवर वर्ना विथ इट्स सोर्स एट Parchitgarh in western Ghat drain the part of the Malwa and Harikangal Tehsil river from the boundary between Sangli and Kolhapur districts. This is the joining of the Krishna and Haripur near the Sangli city. The fertile alluvial deposits are close to the bank of the locally known as Mali. This soil have more moisture and lower course of the river overflow during heavy precipitation during the southwest monsoon। साउथ मानसून जो साउथ है ये वेस्ट है। साउथ वेस्ट मानसून होने की वजह से यहाँ पर बारिश कैसी होगी? हैवी रेनफॉल होने की वजह से प्रिसिपिटेशन मीन बारिश बहुत ज़्यादा होने की वजह से यहाँ पर वाटर भी कैसा रहेगा? वेल डेवलप्ड प्रोसेस रहेगा वाटर ड्रेनेज सिस्टम का, जिसकी बेस पर यहाँ पर इरिगेशन जो पर्पस है वो बहुत ज़्यादा सूटेबल रहती है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है यहाँ पर रिवर पंचगंगा। रिवर पंचगंगा भगवती तहसील कंभुई एंड कसारी। दिस इज द कोर्स ऑफ द पंचगंगा ड्रेनेज सिस्टम and this river system agriculture very well and the alluvial soil of this region plain have been deposited by the flood water during the rainy season। रेनी सीज़न होने की वजह से यहाँ पर जो है फ्लड वगैरह आती हैं, सैलाब जैसी कैफियत आ जाती है। एंड सैलाब होने की वजह से पानी बहुत ज़्यादा होने की वजह से यहाँ पर क्या किया गया है? द कंस्ट्रक्शन ऑफ द डैम ऑन द रिवर भगवती राधानगरी एंड कोल्हापुरी टाइप मीन्स केटी मीन्स कोल्हापुर टाइप। यहाँ पर बनाया गया है, किस डैम कंस्ट्रक्शन किया गया है और ये डैम कंस्ट्रक्शन होने की वजह से जो फैसिलिटी अवेलेबल है तो वो इरिगेशन पर्पस के लिए इस फैसिलिटी को अवेलेबल किया गया। एंड पंचगंगा मीट्स कृष्णा नियर सिरोली इन सिरोली तहसील में ये बनाया गया है। नेक्स्ट लास्ट है रिवर यराला। रिवर यराला विथ इट्स कोर्स इन द नॉर्थ फ्लो साउथवर्ड ड्रेन एन एरिया ऑफ द कट्ठा खानापुर एंड तसगांव तहसील। द रिवर थ्रो बिकम्स ड्राई ड्यूरिंग द समर सीजन and supply through the subterranean surface. This is the Vedganga and Ghataparbha drain southeastern part of the Kolhapur districts। कोल्हापुर डिस्ट्रिक्ट्स में ये अवेलेबल है। नेक्स्ट है जो थर्ड मेजर रिवर है ईस्ट फ्लोइंग की, वो कौन सी है? गोदावरी रिवर बेसिन। Godavari river basin explained with the following points. First is the elevation of this river. The Godavari river is the largest peninsular river of the Maharashtra region, and this is the elevation of the river 1067 meter in the western Ghat near Triambak Hills in Nashik districts of Maharashtra. And after flowing about 1465 km southeast direction, it
falls into the Bay of Bengal. यहाँ पर आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा मैप में गोदावरी रीजन जो है, देखो यहाँ से फ्लो कर रही है और ये बे ऑफ बंगाल में ये डायरेक्ट यहाँ पर एंट्री कर रही है बे ऑफ बंगाल में। गोदावरी इज़ द सेकंड लार्जेस्ट रिवर इन ड्रेनेज इन इंडिया। गोदावरी बेसिन अबाउट 95 पॉइंट ऑफ इंडियाज टोटल जोग्राफिकल एरियाज। कैचमेंट एरिया ऑफ बेसिन 3,12,812 स्क्वायर किलोमीटर। ये कितना है कैचमेंट एरिया है। एंड एक्सटेंड ओवर द स्टेट ऑफ महाराष्ट्र। स्टेट ऑफ महाराष्ट्र कितना कवर किया है 48.6%। एंड तेलंगाना 20%, मध्य प्रदेश 10% एंड आंध्र प्रदेश 3 ये देखो यहाँ पर आपको ध्यान देना है मैप पर फोकस करो यहाँ पर कि कौन कौन से रीजन से ये फ्लो किया गया है, जिसमें महाराष्ट्र है, तेलंगाना है, मध्य प्रदेश है, आंध्र प्रदेश है, छत्तीसगढ़ में 10.9% है, उड़ीसा में 5.7% है एंड कर्नाटक में 1.4% है। दिस इज़ द फ्लोइंग ऑफ द गोदावरी रिवर। Godavari river, the main tributaries of this river, Parvara, Manjira and Manar, and Purna, Paranihita, Indravati. This is the major tributaries of the Godavari river. And Parvana river is the about 64 kilometer source of the Godavari river. And next है परवाना river। यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा रिवर परवाना। यहाँ पर परवाना है, उसके बाद पायगंगा है, पूर्णा, परिणीता, इंद्रावती। दिस इज द सिचुएटेड इन वर्धा एंड वाईगंगा। दिस इज द ड्रेनेज ऑफ द नागपुर सदर्न स्लोप ऑफ दी सातपुरा रेंजेस। यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा नागपुर के साइड में, देखो यहाँ पर है इंद्रावती। गोदावरी अबाउट फॉल्स ऑफ द गोदावरी अबाउट 360 किलोमीटर फॉर दी ओरिजिन बिलो द मंजारा रिवर में कितने किलोमीटर पर गिरता है ये 360 किलोमीटर पर। एंड दिस द रिवर फ्लो ऑन द एजेट ऑफ दी गढ़चिरौली डिस्ट्रिक्ट। यहीं पर आपको गढ़चिरौली डिस्ट्रिक्ट मिलेगा ईस्ट साइड में नागपुर डिस्ट्रिक्ट्स में। वर्धा एंड वाईगंगा रिवर ओरिजिनेटेड इन द साउदर्न स्लोप ऑफ द सातपुरा रेंज ऑफ मध्य प्रदेश टुगेदर द महाराष्ट्र रीजन एंड टोटल लेंथ ऑफ द वर्धा रिवर 483 किलोमीटर। The Indravati river flow through the central India, rises the jungles and eastern Ghat of Odisha, flow the westward to join Godavari. The river course of Indravati through the forest of Bastar. Indravati river flow through the distance of 535 kilometer. It is the important tributaries of the Godavari river. Godavari river. Okay students, the Indravati river flowing through the central India of Maharashtra, the eastern Ghat in the Odisha and flow of the westward to joining the Godavari. The river courses of Indravati is through the dense forest of Bastar. Indravati river flow through the distance of 355 kilometer. This is the important tributaries of the river Godavari. Okay students, thank you.